Gratitude greetings. Divya Saluja Bindra is a beautiful soul, a spiritual gem. Yes, she chose to be a parenting coach and a spiritual leadership trainer. She is the founder of Curious Gigglers, a school with a difference, an early childhood school that is impacting lives of children, parents, and so many families. Welcome, Divya. Thank you. Thank you so What is the secret of your smile? much. I think my family, my husband and my children. Very nice. So, what do you learn from them? I think whatever I am, if I'm able to sit here with you, it's because of my husband and my children. My children have taught me to be a better human being, to be more patient, to be more generous, to be more kind towards everyone. And my husband has taught me the value of believing in myself. So beautiful. Thanks to your husband. A great support Yeah. system makes great families. And yes, reason behind every woman's success is a supportive system. Not just him, it's the entire family. Very beautifully Yes. said. And yes, children teach us a lot. What did you learn from your parents? My parents have made me who I am. If I'm sitting here and if I'm able to talk, the courage, the fearlessness, to take anything head on in life, not be scared of challenges is what I've learned from my father. And to be always giving and to be loving and to not expect from anyone is what I've learned from my mother. So beautiful. And these are divine virtues that you live by every day. Now coming to Yes. my favorite question, Furious Gigglers. नाम ही इतना बढ़िया है. ये नाम कैसे आया और किसने रखा? ये नाम मैंने ही रखा. So मैंने अपनी जर्नी एज अ पेरेंट कोच स्टार्ट की, लाइक यू सेड. सो पेरेंट कोचिंग किसने स्टार्ट की? व्हेन आई हैड माय फर्स्ट डॉटर, आई बिलीव्ड कि पेरेंटिंग के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा समझ नहीं आता था. तो कहीं वो गिर जाती थी तो कोई बोलता था चीनी डालो, कोई बोलता था दीवार को मारो, कोई चींटी मर गया. एंड आई वाज़ नॉट मेकिंग सेंस आउट ऑफ इट कि क्या सही है, क्या गलत है, बच्चे को रेज़ कैसे करना चाहिए. फॉर मी आई थिंक इट वाज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, एक ह्यूमन लाइफ को बड़ा करना. तो उस कन्फ्यूजन में मैं एक पेरेंट कोच बनी कि हम बच्चों को आगे बढ़ाएँगे, मतलब एक अच्छी जनरेशन रेज़ करेंगे. फिर धीरे-धीरे अपनी जर्नी के टाइम मैंने रियलाइज़ किया कि पेरेंट्स से डील करना इतना आसान नहीं है. पेरेंट्स थोड़े लेज़ी होते हैं. उनको लगता है कि कोई च्यवनप्राश हो, खिला दो मेरे बच्चे को और वो बेस्ट बच्चा इन द वर्ल्ड बन जाए. सो दैट्स हाउ in a journey to raise really good generation and conscious adults, I thought of opening a preschool where I can directly touch children. So it was called Curious Gigglers because मेरे को बच्चों की क्यूरियोसिटी को मारना नहीं था. मैं चाहती थी बच्चे जैसे है वैसे रहें. उनको जो ऑर्गेनिकली करना है वो करें, वो एक्सप्लोर करें और अपनी दुनिया में खुद के पोटेंशियल से आगे बढ़े. उनको हम च्यवनप्राश नहीं दें, बल्कि उनको एक डायरेक्शन दें कि हाँ, तुम कर सकते हो. बहुत अच्छी So बात that's how. करते हो. So ये spiritual leadership trainer, why not just leadership? Why not just, mindful leadership or some other word? How did this spiritual leadership come into your life? So, like I said, when my daughter was born, my life was transformed. I was not a spiritual person, मैं religious थी. मैं सिख हूँ तो अपना पाठ पूजा सब करती थी, अभी भी करती हूँ. पर वो डिफरेंस मुझे समझ में आया कि जब मेरे को मेरी पहली बेटी के बाद पोस्टपार्टम डिप्रेशन हुआ. बहुत खराब पोस्टपार्टम डिप्रेशन हुआ. मुझे लगा नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा. तो मैं एक जर्नी में गई, प्राणिक हीलिंग अगर आप जानते हैं. हाँ जी, हाँ जी. तो तो प्राणिक हीलिंग ने मुझे मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब दिया. दैट्स व्हेन माय स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्टेड. मेडिटेशन, जर्नलिंग, सोल रिफ्लेक्ट करना. उस टाइम से लेके अब तक मैंने बहुत कुछ स्पिरिचुअल लेवल पे सीखने की कोशिश की है. स्पिरिचुअल का मतलब रिलीजियस नहीं है अब मेरे लिए. मेरा स्पिरिचुअल का मतलब है आपको अपनी आत्मा से जोड़ना, आपको अपने सोल से कनेक्ट करना. जब हम ये जान जाएँगे कि हमारा सोल पर्पस ही अपनी आत्मा से जुड़ के अपने आत्मा के पर्पस को सॉल्व करके जाना है इस दुनिया से, तो हम अच्छे लीडर, अच्छे पार्टनर, अच्छे एम्प्लॉयर सब कुछ बन सकते हैं.
सो फॉर मी एक अच्छे लीडर का सबसे बड़ा एम होना चाहिए कि वो अपनी आत्मा का पर्पस जाने, तभी वो दूसरों की आत्मा को छेड़ सकता है इन द करेक्ट वे। Beautiful. Which is your biggest achievement? When you आई थिंक माई felt, चिल्ड्रन, wow, Divya. my children are my biggest achievement. If they grow up to be kind human beings who can be in this world and take care of this world in a very, very generous and kind way, I'll be more than happy. I think I want to raise them that way, and that is my biggest achievement till now. I've been trying to do that. तो वो तो हो गया, क्योंकि you are a beautiful soul, you have a great support system, your husband is a great soul, they have the best mother, they have the best father, तो वो हो गया। और अभी तक की और कौन सी अचीवमेंट, if you have to say, वाह दिव्या, how do you do so easily, so beautifully, क्या करती है, कैसे करती है, वो क्वालिटी कौन सी होगी या वो स्किल कौन सी होगी? आई थिंक ऐसे बहुत सारी चीजें हमने की होती हैं, अचीवमेंट्स, वो ट्रॉफीज। लाइक आई सेड, आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन। वो चीजें, वो रिजल्ट्स इतनी मैटर नहीं करती, क्योंकि मेरे को हमेशा लगता है वर्क इन प्रोग्रेस है। सो जो भी अचीव किया है, चाहे स्कूल खोलना, इसके 1 साल में इतने सारे एडमिशन्स कराना, पेरेंट्स को बदलना, ये सब अचीवमेंट्स तो है, लेकिन हम सब एक वर्क इन प्रोग्रेस है। एक अचीवमेंट जिसके लिए मैं अपने ऊपर बहुत प्राउड कर सकूं, आई थिंक इट्स येट टू कम। वो कौन सी है? I think my goal here is to change the way India looks at education. I want to change the way India teaches children, and we are making them robots. हम उनको ना, अगर एक स्टोरी सुना सकती हूँ तो बताती हूँ आपको। हाँ प्लीज प्लीज। तो हम पेरेंट्स, टीचर्स, स्कूलिंग सिस्टम, हम या तो गार्डनर की तरह हो सकते हैं या कारपेंटर की तरह। एक बहुत ही अच्छी बुक है पेरेंटिंग पर। तो अगर आप कारपेंटर हैं, जो कि ज्यादातर स्कूल्स ऑफ पेरेंट्स हैं, तो अगर वो एक बेस्ट कुर्सी देखते हैं ना, ये बहुत कंफर्टेबल है, सबसे अच्छी है, मेरे को ऐसी कुर्सी चाहिए, तो ऐसी 10 कुर्सियां बनाने के लिए बोल देते हैं। वही हम अपने बच्चों के साथ करते हैं। ये बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, माँ बाप के साथ अच्छा है, एकदम अच्छे से बिहेव करता है, अच्छे से खाता है, चलता है, उठता है, हम वैसे 10 बच्चे बनाने की रेस में लग जाते हैं। भूल जाते हैं हर बच्चा अलग है, राइट? और हर बच्चे को सिखाने, पढ़ाने, लर्निंग का तरीका अलग है, और हम सबको डॉक्टर, इंजीनियर, व्हाटएवर बनाने की कोशिश में लग जाते हैं। अगर हम अपने आप को गार्डनर समझेंगे ना, हमारा स्कूलिंग सिस्टम, हम पेरेंट्स, तो गार्डनर क्या करता है? वो बीज बोता है, खाद देता है, पानी देता है, लेकिन उसको नहीं पता फूल कैसे आने वाला है, लेकिन वो अपने बेस्ट एफर्ट्स देता है। उसको नहीं पता फल मीठा आएगा कि सड़ जाएगा कि कीड़ा लग जाएगा। तो उसका काम सिर्फ बेस्ट एफर्ट देना है, उसको बारिश से बचाना है, धूप से बचाना है, खाद देनी है, उसके बाद ना उस फल को छोड़ दे, अपनी जिंदगी में जीने के लिए और उगने के लिए। जिस दिन हमारा स्कूलिंग एजुकेशन सिस्टम इस लेवल पे आ गया कि जहाँ पे हम बच्चों को उनके पोटेंशियल से जीने देते हैं, ऑर्गेनिकली जीने देते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी में टाई अप करके उनकी लाइफ नहीं बांधते हैं, तब आई विल थिंक आई हैव अचीव्ड समथिंग इन कितना टाइम देना चाहते हो अपने आप को ये करने के लिए? लाइफ। I have not really thought about it, but it's a big challenge. Maybe 10 years down the line. आप लेटर लिख दो सीबीएसई को, मोदी जी को, और वो आपका मैसेज पास कर देंगे लीडर्स को। वैसे हमारी एनईपी पॉलिसी में बहुत चेंजेस आए हैं इस साल से, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं हो रही है। तो गवर्नमेंट ट्राई कर रही है, एजुकेशन सिस्टम ट्राई कर रहा है, तो पर भगवान ने एज ना ये आपके अंदर डाल दिया है, तो अब आप एक लेटर लिख दो अपनी तरफ से। और आजकल ठीक है आप। लिखना आसान है, you can tweet, you can email, you can put on social media, tag, तो आई एम श्योर इट विल नॉट टेक 10 years। ओके डन, आई क्योंकि ये राइट दैट भगवान ने लेटर। आपके अंदर डाला, इम्प्लीमेंटेशन वाली बात भी डाली है कि ये सिर्फ मैसेज नहीं जाना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाए। तो इसीलिए आपका ये अवतार हुआ है और अच्छा लग रहा है मेरे को। अब आई विल कम टू माय नेक्स्ट फेवरेट क्वेश्चन, जो हमेशा मुझे अच्छा लगता है सुनना और आंसर देने वाले को भी अच्छा लगता है। 3 happiest moments। The happiest moments, my first one will always remain this. So
मैं 8th क्लास में, मेरे को बहुत स्कूल चेंज करने पड़ते थे पापा की जॉब चेंज होने से। सो व्हेन आई चेंज माय स्कूल इन 8th क्लास, तो वहां पे बाहर एक बोर्ड लगा था जहाँ पे टॉप अचीवर्स ऑफ स्कूल जो 12th में होते हैं उस पे नाम लिखा था। सो माय डैड वाज अ वेरी फ्रेंडली पर्सन, उनको ऐसा नहीं था कि फर्स्ट आना ये करना है, कभी प्रेशर नहीं था। बट ऐसे ही उन्होंने बोला इस बोर्ड पे तेरा नाम होगा तो क्या मजा आएगा, जस्ट दैट। एंड दैट डे आई थॉट टू माई सेल्फ इस बोर्ड पे तो मेरा नाम हो। And when I passed out my 12th, that board had my name, and that was one of my biggest, happiest moments. Not being a papa pleaser, but I was very happy to give something back to my dad if I could. That was one of my happiest moments. My second happiest moment would be when my first child was born. For second child also, if she sees this when she grows up, she's not gonna leave me. So, I mean, when I became the mother first time, the emotions I had were very, very different. It cannot be defined. The third one I should be saying कि जो मेरा स्कूल खुला, बट मेरा सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट था जब मेरे हस्बैंड और मैंने वी बोथ स्टार्टेड अ जर्नी। मैं जब शादी करके यहाँ आई कॉर्पोरेट लाइफ छोड़ के, सो वी हैव अ रेस्टोरेंट, वी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, सो आई एम एन एमबीए एंड ऑल, तो वो सब कॉर्पोरेट लाइफ छूट के आई इन अ सिटी वेयर देयर इज नो कॉर्पोरेट। सो अभी रिसेंटली हमने अपना एक स्पिरिचुअल कैफे खोला है, माइंडफुलनेस कैफे, which is called Cafe Karma Diaries. And the way it is touching people and the way it is moving people, I think it is one of my happiest moment the day it was open. अब इसके बारे में तो मुझे पता नहीं था, तो इसके बारे में थोड़ा और बता दीजिए। So my husband and I also run restaurants and cafes. We have few of them. तो अभी हमारा जो we have a legacy. I mean हमारा 80 years old पुराना, more than 50 years old पुराना restaurant है in a small hill town called Kurseong. So we have ये a कौन सी cafe स्टेट में there. है ये? Sorry, कौन सी स्टेट में है ये? West Bengal. दार्जिलिंग से 1 घंटा पहले है Kurseong. So toy train station के सामने we have a 50-60-year-old hotel called Amarjeet and now a cafe called Kurseong Diaries. We have a 13-year-old restaurant in Siliguri, which is in West Bengal. And अभी हमने उसी restaurant के extension में cafe खोला है, which is called Cafe Karma Diaries. And my husband has put his heart and soul there. He has made it into a spiritual cafe. He's put all the elements to raise a person, and the mission of that cafe, खाना अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, that's taken. But the mission of the cafe is to leave the people better than we found them. So if anybody goes there, should be touched in a way. So it's the first cafe in India which has journaling menus. So if you're feeling something, if you want to move on from a relationship, if you're feeling that आपके पास बहुत सारे debt है, या relationship में confusion है, या parents के साथ issue है, we have a journal for everything. You can just take that out, you can write it and take it with you, and it has some action sheets also, and you can do a lot of things to work upon yourself in that cafe. बहुत सुंदर। तो ये सब आपके आइडिया थे या हस्बैंड के आइडिया थे? उसी के थे, मेरे husband के idea थे. तो उनको इंटरव्यू करना चाहिए मुझे। तो मुझे Absolutely. बहुत, हाँ, He is one of the person who has actually pushed me to say yes to everything. I am not a very interview person. I would have said no very easily. But हाँ। I think उनकी वजह से I am here, and he is the reason for every growth I have. तो उनको थैंक यू बोल देना मेरी तरफ से, और मैं भी उनको थैंक यू बोल रहा हूँ डायरेक्टली जब वो ये देखेंगे, और मैं उनको इनवाइट कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, बिकॉज दिस इज द ओनली इंटरव्यू where we have gone beyond, because I thought okay, curious gigglers, बच्चे, parenting coach, इसी की बात होगी, बट मुझे बहुत कुछ मिला, क्योंकि आप पूछ रहे थे मैं इंटरव्यू क्यों करता हूँ, मैं इसीलिए करता हूँ क्योंकि मैं सीख रहा हूँ, इतने आइडियाज ले रहा हूँ आपसे। तो Thank you. it is a miracle meeting you, it is a blessing meeting you. And now let's come to one word answers. Life in one word. Life in one word is magical. बच्चे in one word. My heart. Curious gigglers in one word. Consciousness. Cafe Karma Diaries in one word. Mindfulness. Your husband in one word. My life.
Coaching in one word. Touching hearts of people. Leadership in one word. Empowering. Spirituality in one word. Soul connection. Divya in one word. Free flowing. Yes, you are truly blessed with this virtue of free flowing, courage, leadership, intuition, healing, touching lives, and so many more. And I want to Thank thank you for being here, giving your valuable time, gift of spiritual wisdom, and for what you are, for who you are, for what you do, and how you do. I wish you Thank you all so the much. best in all your noble future selfless endeavors. Thank you so much, Divya. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you.